Hey, hello everyone. This is your host, not a host, this is your host, SRGNO programmer. And hmm, some error is there or not? Yes, it is unable to detect my screen. अब आ ही नहीं रहा भाई, अलग बच्चों दे। खुद को ही कर दो क्या? Okay, so we are connected. Nice. तिळगुळ घ्या आमच्यासोबत गोड बोला. थोडंच बघा. आमचं तिळगुळ सांडू नका, आमच्यासोबत भांडू नका. अजून अजून काय? काय करू दे? काय नाव बा? करू द्या. Hello. So let us practice by. Practice important है. माइक का इंटेक कहाँ से है? Hmm. Okay. We will click on it. It is 61. Count symmetric integers. We are going to two positive integer low and high. Low and high. An integer x consisting of 2 into n digit. Integer x consisting of 2 into n digits in a symmetric is symmetric if sum of the first n digits of x is equal to the last x digits of a number with an odd numbers with an odd numbers of digit never symmetric. Return the number of symmetric integers in the range low to high. So basically low to high चलो हमें पता है कि बस इवन लेंथ वाले हो सकते हैं. So we can start with 10 or we can simply enter c until will be equals to 0, then for int I equals to low I smaller than equal to gh I plus plus. और हमें क्या करना है कि cnt प्लस इक्वल्स टू एक फंक्शन लिखूंगा इज सीमेट सिमेट्रिक. ओके, इसके अंदर मैं आई दे दूंगा जो कि अपना नंबर है और ये सिमेट्रिक होगा तो रिटर्न कर देगा तो बुलियन इज सिमेट्रिक इंटरनम. हमें सॉल्व करना है बेसिकली दैट्स सॉल्विंग इट और हमें यहाँ से रिटर्न करना है ये वाला आंसर सीएनटी. नाउ सिमेट्रिक का सबसे पहला वो बोला इन्होंने कि सिमेट्रिक की लेंथ शुड बी. तो मैं एक काम करता हूँ तो एक इफ टू स्ट्रिंग और टू स्ट्रिंग num dot size if it is mod 2 then return false. अगर ये odd है तो कुछ फायदा नहीं है. नहीं तो हमें क्या करना है ये जो भी स्ट्रिंग बना तो स्ट्रिंग बनाना तो है ही तो इसका मतलब तो स्ट्रिंग str will be equals to to string num and then I will simply say str dot size. okay, else तो ये होगा तो int n equals to str dot size या फिर अपन ऐसे कर सकते हैं int I equals to 0 j equals to str dot size minus 1 while I is smaller than j. तब तक अपन क्या करेंगे एक सम लेंगे और सम को एक से प्लस करेंगे एक से माइनस करेंगे. सो सम विल बी इक्वल्स टू 0 इनिशियली और लास्ट में वो 0 ही होनी चाहिए. ओके, सो सम प्लस इक्वल्स टू करेंगे व्हाट नम्स का आई या फिर
str का I जो कि एक कैरेक्टर होगा and I then need to return it by 0 that is okay and then same goes with the minus बस str के j के साथ str के j के साथ और इसको I के साथ ही करेंगे I को प्लस प्लस तो करते रहना है और j को माइनस माइनस करते रहना है and that's it and return sum equals to 0 that's it. Okay, so 9 is the count for first and second for second is a 4 so let's try. Okay, it got accepted. Thank you, LeetCode. Okay, this is the second question. Minimum operations to make a special number. Okay. Minimum operations to make a special number. So first we will see one person is watching us. Thank you, bye. Okay, you are given a zero index string num representing a non-negative integer. Okay, you are given a zero index string num representing a non-negative integer. इसका मतलब वो integer तो positive है. In one operation, you can pick any digit of nums and delete it. Now, note that if you delete all the digits of num will become 0. Return minimum number of operations required to make num special. Integer x is considered special if it is divisible by 25. Num's dot length is 100 if it is divisible by 25. So 20 25. इसका मतलब the number should either end with the 0 or with the 5. Okay, 25 का टेबल थोड़ा लिखते हैं है ना. So minimum number will be 25, then second will be 50, then third will be 75, then 75 plus 25 is 100, 100 plus 25 will be, so basically minimum operation, so basically 25. ट्वेंटी इंटू थ्री तो 60 प्लस 15 बन रहा है. हम्म. एक तो चीज तो बहुत सिंपल है कि अगर एनी नंबर है जैसे कि नंबर है, so this last digit should be 0 or 5. That's it. If I use modular mode, अगर आप ठीक से सोचो क्या है ये नंबर, क्या है बताओ जरा. एट द एंड दिया था 22 0. बेसिकली ये नंबर था 22 45 एंड 0. सो लास्ट के दो डिजिट को मैं मॉड करूंगा 25 के साथ. 0 आया, 0 आया. फिर मैं इस 0 को यहाँ पे अपेंड कर दूंगा.
बचा 400, सो 400 मॉड 25 विल बिकम, सही है। फिर रहेगा तेरा 2000 मॉड 25, देन 1 2 3 4 5, नेट शो भी 2000। हम्म। अच्छा, सो बेसिकली लास्ट में मेरे को 3 नंबर बनाना है, 25, 50, 75 और 00। अगर लास्ट में ये सब बन रहा है दोनों, तो बाकी का तो कुछ भी डाल लें। देखो, इफ इट इज पॉसिबल। ये 245047 था। अब आई नो कि अगर मैं इन दोनों को कर दूंगा तो इसके आगे कुछ भी डाल ले, आई कैन मेक दिस, आई कैन मेक दैट, आई कैन मेक दैट, आई कैन गारंटी। सो आई वांट टू फाइंड हर किसी के लिए कि मेरे को कितने ऑपरेशन लगेंगे। 00 बनाने के लिए कितना डिलेशन लगेगा, 25 बनाने के लिए कितना, 50 बनाने के लिए कितना, 75 बनाने के लिए कितना, एंड एट द एंड क्या बोला है, डिजिट डिलीट नोट दैट इफ डिलीट ऑल। अच्छा, तो सारे डिलीट करेंगे तो भी हो सकता है, मतलब 25 तो बनाने का नहीं, पर तू सारा डिलीट करेगा तो 00 बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो 00 बनाने के लिए तेरे पास ऑप्शन होगा व्हाट, लेंथ ऑफ द दैट, लेंथ ऑफ फुल अरे, कि सारे के सारे अरे उड़ा दिया, तेरे पास 00 बन गया। ओके, सो आई कैन सॉल्व यूजिंग दैट, आई थिंक कि मेरे को बस दिखना है कि 25 एंड में बनाने के लिए क्या लग रहा है ऑपरेशन, 50 बनाने के लिए क्या लग रहा है, 75 बनाने के लिए लग रहा है, एंड 00 बनाने के लिए क्या लग रहा है। सर 00 को इनिशियली मैं रख दूंगा एन, एन होगा, देन 00 बनाने के लिए क्या लग रहा है वो होगा एन बेसिकली, और होगा 25, होगा फिर 50, फिर होगा 75। ओके, अगर मैं रिवर्स कर दूँ स्ट्रिंग तो 00 एक बनेगा, एक बनेगा 52, एक बनेगा 50 लाने में कितना लगेगा, और एक बनेगा 57 लाने में कितना लगेगा। If I know 5 की फर्स्ट इंडेक्स, 0 की फर्स्ट इंडेक्स, 0 की सेकंड इंडेक्स, 5 की सेकंड इंडेक्स, 2 की फर्स्ट इंडेक्स, या फिर 5 के बाद 2 की इंडेक्स चाहिए, सो बेसिकली हर किसी के लिए मैं अलग अलग जा सकता हूँ। How can I implement this? That's the fucking question.
जीरो जीरो बनाने के लिए कितने ऑपरेशन लगेंगे? ओके, आई विल ट्राई दैट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपली स्ट्रिंग की स्ट्रिंग ही रहने दो, और आई विल सिंपली से कि मेरे को चार चीजें बनानी है, एंड आई विल क्रिएट int आंसर विल बी इक्वल्स n, तो होगा ही भाई, n तो होगा। n व्हाट इज n? n will be nums dot size, n will be equals to nums dot size, n तो होगा ही। एंड देन आई विल सिंपली से आंसर विल बी इक्वल्स टू मेन ऑफ आंसर कॉमा, एक फंक्शन बनाऊंगा सॉल्व, जिसके अंदर मैं num लूंगा, एंड आई विल से, या फिर num को रिवर्स कर देता हूँ, रिवर्स num dot begin comma num dot end, and I will say what will be the cost, और इसकी साइज 2 से ऊपर दी नहीं है। अगर ये n है, if it is smaller than, if n is smaller or equal to 1, then I can simply return 1, या फिर n जो भी है, क्योंकि सारे डिलीट करने पड़ेंगे। ये तो हो गया। फिर तूने रिवर्स कर दिया nums डॉट बिगिन से nums डॉट एंड को, और nums दे दिया, और फिर मैं बोलूंगा कि मेरे को बनाना क्या है। जैसे कि मेरे को अगर बनाना होता 0 0, तो मैं 0 0 बनाने के लिए डाल देता, वैसे मैं हर किसी के लिए करूंगा, मिनिमम चाहिए ना मेरे को। तो 0 0 बनाना है, और एक था अपना उल्टा में बनाना है, तो 52 एक बनाना था। वैसे मेरे को बनाना था 05, वैसे मेरे को बनाना था 57। Okay, so I will try to make using all the answer and written answer. Okay, now I have to write the solve function. Okay, then I will be solve, इसके अंदर मैंने दिया है string num, जो कि as it is वहां से मिला होगा, और फिर होगा string required, ठीक है, and string required will be always 2. So I want to make that, I want to find that. So int initially there are int cnt will be equals to 0 होगा, और तू देखता चला जाएगा कि कैन आई मेक दिस, कैन आई मेक दिस, कैन आई मेक दिस, इफ आई कैन नॉट मेक दिस एट द एंड ऑफ द डे, तो एक होगा तेरा int I pointer which will be equals to 0 initially, and then I will start, or it will j pointer, and I will start at int I equals to 0, I is smaller than nums dot size I plus plus, or simply if required of I, sorry, what num of I equals to require of j, then I will simply say j plus plus, है ना, j प्लस प्लस। अगर ऐसा नहीं है else, तो वो वाला cnt प्लस प्लस कर दे, एंड एट द एंड ऑफ द डे ये भी देखूंगा इफ j इक्वल्स टू 2 हो गए, देन आई कैन सिंपली रिटर्न cnt एट द एंड। अगर ऐसा नहीं होता कभी भी cnt j इक्वल्स टू cnt बना ही नहीं, इसका मतलब तूने कभी रिक्वायरमेंट फुलफिल की ही नहीं। अगर फुलफिल की नहीं, देन रिटर्न int max। एरूर नम्स नहीं है भाई, नम है, रेट लिमिटर। ओके नम्स, और एक बार, तो ये 429 रिक्वेस्ट, अगर मैं रेट लिमिट करूंगा तो ये 429 आएगी। रुको रिस्पॉन्स देखने, तो ये सबमिट बाद में करूंगा। 429 आना चाहिए। नेटवर्क, अभी जो आई वो पेलोड हेडर, वेयर द फक इज हेडर, इट इज जस्ट आई डोंट नो विच वन इज दिस। और 429 होती है, जैसे कि अगर रेट लिमिट करता है, तो इसका आंसर आया है 2 जो कि आना था, इसका आंसर आया 3 जो कि आना था, इसका आंसर आया 2 आ गया, एक आना था। अच्छा, सो आई कैन सिंपली से कि मेरे को खाली जीरो ही बनाना हो सकता है। अगर मैं खाली जीरो ही बना दे तो भी मेरा आंसर हो जाएगा ना। सो आई कैन से अगर जीरो एग्जिस्ट करता है सिंपली, सो आंसर कैन बी दैट ओनली वन जीरो। ठीक है, तो मेरे को बस सिंपल देखते हैं फॉर इन नाम। अच्छा, अगर बुलियन इज जीरो,
इक्वल्स टू इनिशियली फॉल्स फॉल्स करूंगा अगर ये होता है कहीं पे इफ a इक्वल्स टू 0 होगा देन आई विल सिंपली से कि yes is 0 will be equals to true एंड अगर ये 0 भी होता है देन आंसर अगेन इधर यहाँ पे होगा if is 0 अगर I have a 0 present in it then answer will be equals to mean of answer comma n minus 1 n minus 1 बताओ क्यों क्योंकि खाली 0 रखूंगा n मतलब क्या था और एक वो कर दूंगा हाँ ठीक है ये बनाया ये एक सही है और एक सही है सबमिट अगर दिए अरे हाँ खाली 0 ही पड़ा होगा तो इसे क्यों कर रहा हूँ मैं रिटर्न तो एक के लिए चेक कर रहा हूँ ना जाके अगर साइज है के तो हर किसी के लिए चेक करेगा आएगा नहीं एट द एंड रिटर्न क्या करेगा एन विच इज अगर इसको रन टेस्ट कैसे करूँ 0 को 0 आया एक को एक आया एक्सेप्ट कर ले भाई कर ले भाई कर लिया भाई देखो कभी कभी कोई कोई एज केस हैंडल करना भी हक देता हूँ जैसे कि इधर हैंडल करना करने की वजह से रॉन्ग आंसर है अगर हैंडल नहीं करता तो सही आंसर आ जाता 2 persons are watching that's good do let's go to the next count and increasing subarrays increase subarrays bhai so you are given a zero indexed integer array nums an integer mod integer modulo दिया है okay integer modulo and an integer k भी दिया है you are your task is to find the count of substring subarrays that are increasing increasing मतलब strictly increasing होता है और subarray nums of L2 L dot to R मतलब ये जो है increasing if the following condition holds let CNT be the number of indices in the range L to R such that nums of I modulo mod or modulo will be equals to k then CNT modulo or CNT be the number of indices in the range L to R L to R में CNT be the number of indices nums of I modulo CNT तो जो काउंट है hmm, if you think on this what are they trying to say अगर मेरा L to R एक रेंज है जिसका मैं बोलूंगा सब एरे L to R then CNT will be equals to R basically R minus L plus 1 okay CNT will be R minus L plus 1 and then what is the that is increasing is called as a nums of I modulo okay तो ये बोल रहा है कि nums of जो I होगा मॉड्यूलो मॉड जो होगा शुड बी इक्वल्स टू के ओके एंड CNT मॉड्यूलो मॉड शुड बी इक्वल्स टू के ठीक है सो बेसिकली nums of I
modulo mod will be equals to cnt modulo mod. That means कैसे लिखते हैं वो, a will be congruent to b mod m होता है ना ऐसे कुछ, will be congruent to b mod m, इसका मतलब nums of I will be congruent to cnt mod m, or we can say it as mod m mod. If it is, we can invert this and say कि cnt will be congruent to nums of I mod. तो हमें वो k के इक्वल भी चाहिए, ये भी सोचना पड़ेगा. This and this will be equals to k. अगर मैं एक एग्जांपल देखूं, काउंट करना है, काउंट ऑफ इंक्रीजिंग सब एरेस. ओके, कोई आंसर ये वाला है, इसमें 2 आ रहा है और k 0 है. ओके, सो इसका मैं बोल सकता हूँ 3 1 9 और 6. 0 1 2 3. अब इन सबको मैं अगर मॉड करूँ, नम्स ऑफ आई मॉड से, मॉड्यूलो क्या दिया है मेरे को, 3 दिया है. सो 3 से मॉड करूंगा 0 आएगा, 3 से मॉड करूंगा 1 आएगा, 3 से मॉड करूंगा तो 0 आएगा, 3 से मॉड करूंगा तो फिर 0 आएगा. एंड व्हाट दे आर आस्किंग इज CNT is what? The CNT is what? CNT mod k. Then CNT is a number of indices I in the range L to R. Okay. So इसके अंदर 2 indices है, ले नहीं सकता, 3 चाहिए. अगर ये 3 ले लूं, इसका आंसर 2 कहाँ से लाएं इन लोग, वो देखते हैं जरा. Yeah, such that. अच्छा, तो ये बेसिकली बोल रहे हैं, मेरे क्वेश्चन ज्यादा ये वो नहीं कर दिया क्या कॉम्प्लिकेट. CNT is the number of indices I in the range L to R such that nums of I modulo k. तो काउंट वो करना है. सो ये 0 आया, ये वन है, ये 0 आया, ये 0 आया, तो 0 0 वाले 3 इंडेक्सेस. ठीक है, इन द सब एरे इटसेल्फ. हाँ ठीक है, 3 है. एंड काउंट, देन काउंट मॉड्यूलो मॉड इक्वल्स टू k. अगर मैं पूरे सब एरे को कंसिडर करूं, देन अब मेरे पास काउंट तो होगा 3. 3 मॉड 3 करूंगा 0 आया, 3 मॉड 1 करूंगा 1 आया, 3 मॉड 2 करूंगा 2 आया, 3 मॉड 3 करूंगा 0 आया.
रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द काउंट ऑफ इंक्रीजिंग सबैरे। बोला क्या गया? इंटरेस्टिंग है बहन के लोड़े, इंक्रीजिंग इंटरेस्टिंग सबैरे। Sabari nums L2R is interesting if following condition holds. Let count be the number of indices I in the range L2R such that ये तो ये काउंट बन गया, अपने पास काउंट है। जो तेरे को सबैरे करना है वो ये है भोसड़ी के, बात खत्म। देन काउंट मॉड्यूलो के, अच्छा देन काउंट मॉड मॉड शुड बी इक्वल्स टू के, ओके फक। तो इसका मतलब ओके 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 ओके। सबसे पहले रुको, सबसे पहले व्हाट वी वांट टू डू, वी विल सिंपली गो थ्रू द array and do the fucking thing, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट दे हैव सेड कि ये जो तेरे को सब array चूज करना है ना भाई, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं वो तेरे को पता होना चाहिए। एंड देन रेंज तो निकाल लेगा। इफ यू निकालेगा रेंज, देन यू शुड कम टू नो दैट कि तेरे पास जीरो कितने हैं, जो भी चाहिए था मॉड कितना है वो मॉड मिला। देन यू विल सिंपली से कि वो जो मॉड तेरे को, जैसे कि इधर दो मिला, दो मॉड तीन विल बिकम वन, दैट इज नॉट गुड। व्हाट आई वांट दैट विल बिकम, तो इधर आऊंगा तो इस रेंज में कितना है, जीरो है। जीरो mod 3 will become zero and that is the one answer. So basically this is one answer and this is whole is one answer and that's how it's coming to. Okay, that's like a good track reach प्रथमेश वर्धम भाई, मेरा भाई रात दिन कर रहा है मेहनत। Okay, so we have to think about it. We have to think about it. And I now, after understanding this question, I am thinking it is quite a simple. Now requirement क्या क्या है वो सोचो हमें। I want to find a L2R such that काउंट उसके अंदर जो मॉड का होगा तो मॉड का काउंट तो लेके आएगा, सिंपल सिस्टम है। ओके, अब इसके अंदर मॉड का काउंट तो लेके आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है वेट। ओ, यहाँ तक वन आया, यहाँ तक भी वन रहेगा, यहाँ तक यहाँ तक टू बनेगा, जीरो का काउंट, यहाँ तक तीन बनेगा जीरो काउंट, ठीक है, नो इश्यूज अब तक। जीरो तो होगा ही, तो ये बनेगा जीरो। मैं वन देखूंगा इसके पीछे कहाँ है, ये यहाँ ही था तो इसका मतलब एक वन है, इसका मतलब मैं कर सकता हूँ यहाँ पे जीरो है तो इसका मतलब ये कर सकता हूँ, दैट्स इट। तो मेरे पास दो आंसर है, ठीक है। I have this approach. I don't know if it is correct or not. Let us try for this. And if it is simply 0, 0, 1, 1, 2, 2, then I don't think it. Oh, okay. 3, okay, 3, 2, 4. First we have to do modulo mod. So modulo mod 1, modulo mod 0, modulo mod 0. Then I want what? K equals to 1. तो एक चाहिए, तो मैं काउंट करूंगा। बेसिकली जीरो काउंट यहाँ पे पड़ा है, यहाँ तक काउंट वन है, यहाँ तक भी काउंट वन है, यहाँ तक भी काउंट वन है। Okay, so I will go.
बेसिकली ये अकेला भी हो सकता है, देन दिस टू कैन बी एंड दिस थ्री कैन बी, बट दिस टू कैन नॉट बी। ठीक है, समझ गया था। मगर एक तो सबैरे चूज कर रहा है, उस सबैरे के बीच में जो भी मॉड्यूलो आ रहा है वो जो इक्वल टू के, उसका काउंट शुड बी मॉड्यूलो के होना चाहिए। हम्म। No idea is coming into my head, bro. Why the fuck is this happening? I don't know. Should solvable. I know I can solve this, but how?
मेरे को चाहिए काउंट ऑफ के। अब के तो बने, मन का काउंट उसके अंदर भी मॉड करने के बाद के आना चाहिए। तो शांति से सोचते हैं। अगर यहाँ पे मैं ए मानूं तो ए मॉड करूंगा मैं। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक अगर मेरे को चाहिए तो व्हाट इज अ रिक्वायरमेंट, माय रिक्वायरमेंट वुड बी K1 था, K1 था, K1 था, K2 बना, A2 बना, A2 बना। कुछ तो लॉजिक आए मित्र। अगर मॉड नहीं होता काउंट होता तू कैसे सोचता? अच्छा, अगर ये जीरो के साथ पेयर कर सकता हूँ आगे।
क्या सोच नहीं पा रहा हूँ यार मैं। रैंक की माँ का चोला हो गया होगा भाई, इतना कुछ होगा नहीं इसमें भी। अगले वाला सवाल पढ़ता हूँ एक बार, आई डोंट नो आई। मिनिमम एज वेट इक्विलिब्रियम क्वेरी इन ट्री। चलो भाई मैं साइड पीस ऑफ करता हूँ, मेरे को नहीं करना भाई ये सब कुछ। अपडेट अब सॉल्व करूंगा। क्या बोल रहा है भाई? भाई एक बात बता, मुझे 10 LPA का जॉब टारगेट है, तो मैं क्या चीज पढ़ू डीएस है भाई? मेरे को खुद 10 लाख नहीं मिला, मैं क्या बताऊं? बता दे भाई, कौन से पैटर्न में 10 लाख टारगेट करने के लिए। भाई आजकल 6 लाख के लिए भी एडवांस डीपी ऑन ट्रीज व्रीज पूछ रहे हैं। इन्फोसिस वाले की टेस्ट देख लो जाके, अलग बकचोदी है भाई ये। कुछ भी पढ़ो, इट्स ऑल अबाउट गॉड्स प्लान। भगवान तुम्हें चाहता है सिलेक्ट करवाना तो हो जाएगा, अगर नहीं चाहता तो तुम नहीं होगे, कुछ भी कर लो, दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।